Good morning, everyone. Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing this session for Design of AC Machine 7 SEM Electrical. As previously, I sent this video, but due to some technical issues, I you cannot able to hear the voice. So I thought that I have to put this lecture again because this topic has remaining in your syllabus. We discussed the unit 2 as a design of single phase induction motor. The last topic for that topic, that is capacitance for the maximum torque. As we all know that basically single phase induction motor is not a self started. Why? Because there is no production of RMF or rotating magnetic field, and regarding that we discussed so many topics. Now that particularly starting method is based on its capacitor, or a starting method or a type of the motor which is using the capacitor. How? That capacitor start motor, capacitor start and run, capacitor run motor. So this kind of externally auxiliary winding is added into the our single phase induction motor. So in the case of induction single phase induction motor, that capacitance or a value for the capacitance for the maximum torque is how much, that can be discussed here. So for that we have to know about this circle diagram for the single phase induction motor. और अगर आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये आपको याद नहीं है तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्कल डायग्राम फॉर दी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई सर्कल डायग्राम कैसा होगा, या फिर इसके ऊपर से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. सो लेटर स्टार्ट विथ दी इट्स कैलकुलेशन. So for that equations, that from the figure we can say that theta a, where is the theta a, sorry, हाँ. So यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें आपको जूम करके बताना चाहूँगा. सो यहाँ पे थीटा एम है, ये जो है वो क्लियर, ये है थीटा ए इन बिटवीन दीज, या फिर ऐसे भी मैं बता सकता हूँ. ठीक है, ये है आपका थीटा एम, ये है थीटा ए. क्लियर, यहाँ पे आई ए, यहाँ पे आई एस एम. क्लियर, ओके. सो फ्रॉम द जियोमेट्री वी कैन से दैट द थीटा ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा एम डिवाइड बाय 2. सो if we apply the tangent for this case, what is the equation? Tan theta a, that is equal to under root of 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. लेकिन आपको शायद आपकी जियोमेट्री के कुछ लेक्चर्स याद होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर दैट कंडीशन 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सो दैट इक्वेशन शुड बी 1 लाइक sin theta m divided by 1 plus sin theta m, which is this equation. Clear? So equation for the tan theta that should be zm minus xlm upon zm plus xlm all raised to 1 by 2. Clear? Okay. So उसके ऊपर से सिंप्लीफाइड इक्वेशन हम अगर बताना चाहें तो ये क्या बनता है, बिकॉज वी नो दैट कि जेड एम इज इक्वल टू आर एम प्लस एक्स एल एम. क्लियर? तो इन केस ऑफ जेड एम माइनस एक्स एल एम दैट शुड बी ओनली आर एम. क्लियर? तो यहाँ पे ये लिख बताया है. और जेड एम प्लस एक्स एल एम अगर उसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास नहीं है तो वो एज इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे tan theta that should be xc minus xla upon ra, because we know that. Clear? तो xc minus xla divided by ra is equal to rm upon zm
प्लस एक्स एल एम। क्लियर। तो यहाँ पे ये टर्म आप इक्वेट करोगे तो आप एक्स सी को थोड़ा मान लो कि आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर इफ़ यू वांट टू फाइंड दैट वैल्यू फॉर एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो दैट शुड बी एक्स सी माइनस एक्स एल ए इज इक्वल टू आर ए इंटू आर एम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इक्वल टू के सामने। सो एक्स सी माइनस एक्स एल ए दैट शुड बी आर एम इंटू आर ए डिवाइड बाई जेड एम प्लस एक्स एल एम। ओके, now if we want to make subject only xc without in any terms, so at that time xc is equal to xla plus ra into rm divided by zm plus xlm। clear। okay, so we can also say that कि और हमें पता है कि एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस शुड बी 1/2 एफ सी। हमारा टॉपिक क्या था कि हमें मैक्सिमम टॉर्क जब प्रोड्यूस करना चाहते हैं एट दैट टाइम कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो दैट शुड बी 1/2 एफ सी। और एट दैट टाइम अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे सी कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस न्यूमरेटर से हाँ न्यूमरेटर में था, तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो सी ए इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स सी। क्लियर। सो वी कैन से दैट दी कैपेसिटेंस फॉर दी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बिकॉज यहाँ पे ए डिनोट्स दी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 एफ इंटू एक्स सी। क्लियर। ओके, सो ये आपका था लास्ट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू our unit second, that is design of single phase induction motor। clear। okay, now as previously जो कि हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें भी हमने ये रिवीजन किया था, और अभी इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है हमारी इस थियरीज़ को पढ़े हुए। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लें, या फिर अभी थोड़ा लेक्चर का टाइम है तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि भाई जो भी आईएमपी टॉपिक्स है रिगार्डिंग दिस यूनिट, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में हार्डली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर 3 क्वेश्चन जो होते तो एक 3, 4 और 7 का रहेगा, और हार्डली इसके 3 to 4 क्वेश्चंस ओनली फॉर 7 मार्क्स, और रिमेनिंग क्वेश्चन आर फॉर दी 3 to 4 मार्क्स। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें या फिर इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, या फिर एक बार पूरे चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें पता है कि भाई आपका सेकंड यूनिट है कि डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इन दिस केस वी कैन डिस्कस दी फर्स्ट पोर्शन इज आउटपुट इक्वेशन विच हैज़ वेरी गुड वेटेज बट लिटल बिट लो कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल चीज़ें एज इट इज़ है, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 7 मार्क के लिए पूछा जाता तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी प्लस ईच एंड एवरी स्मॉल इक्वेशंस विथ यूनिट्स। क्लियर। ओके, नाउ सेकंड वन या फिर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक टर्मिनोलॉजी को जस्टिफाई करना है, पूरे इक्वेशन सब चीज़ें आपको लिखनी है फॉर द आउटपुट इक्वेशन। So you have to derive that equation is C0 d square into ln s। clear। okay, now for that single phase motor we can say that the efficiency and power factor standard value you have to understand or keep in mind these values, because sometimes in numerical they are not giving the particular power factor or efficiency, at that time you have to choose these values। clear। ओके, एंड यहाँ पे एक छोटी इक्वेशन है जो कि हॉर्स पावर, और उसके लिए आपको पता ही है कि हॉर्स पावर में अगर रेटिंग है तो क्या करना है। देन आफ्टर चॉइस ऑफ द लोडिंग ऑफ द मशीन्स, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे आपने डिस्कस किया था, तो सारों के मतलब जितने भी लोडिंग है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, तो
उन दोनों के केसेस में फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग एट दैट टाइम। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, बिकॉज यहाँ पे वो पैरामीटर्स 80 रहते हैं। सो नाउ कंपेरिजन फॉर थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इफ वी हैव द सेम डायमीटर एंड लेंथ फॉर द इंडक्शन मोटर। In this case, this is the most important 7-mark question that if I am an examiner then I have to prefer this question because this is the perfect standard question for the design point of view. Why? बिकॉज यहाँ पे आपको सिंगल फेज और थ्री फेज की जो बेसिक हम डिफरेंस की थियरी वाली बात करते हैं कि भाई वो इसके रेटिंग ज़्यादा होते हैं या फिर स्टार्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टार्टेड है या नहीं, या फिर उसके स्टार्टिंग टाइप्स, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मली थियरी बेस्ड बातें हैं। लेकिन पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस एज एन डिज़ाइन इंजीनियर एट दैट टाइम आपको यहाँ पे डिज़ाइन पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंपैरिजन पता होना ज़रूरी है। और ये हमारा डिज़ाइन सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट का या फिर इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। सो यहाँ पे सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं तो वो पूरा उसकी जो भी कंपैरिजन है जो कि आपको डी स्क्वेयर एल या फिर सेम डी एंड एल एट दैट केस आपको क्या करना है या फिर कौन सी चीज़ें याद रखनी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे के डब्ल्यू जो कि वाइंडिंग फैक्टर है, के डब्ल्यू का इक्वेशन क्या है, के पी इंटू के डी, या फिर यहाँ पे आप के सी इंटू के डी भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये के सी जो दिखा रहा है वो कोइल स्पान फैक्टर है एंड के सी जो कि कोइल स्पान फैक्टर को आप वो भी बता सकते हो और के पी भी लिख सकते हैं एट द टाइम के डी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो यहाँ पे जो भी आपके सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हैं उन दोनों के लिए के सी इंटू के डी या फिर के पी इंटू के डी वो दोनों स्पेसिफाई करो। देन आफ्टर उन दोनों के इक्वेशन आपको लिखने हैं। ओके, देन आफ्टर उन दोनों के डी स्क्वेयर एल को आप सब्जेक्ट बनाओगे इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस इक्वेशन। एट द टाइम इक्वेशन शुड बी 3/π अपॉन 2/π, तो यहाँ पे बनेगा 3/2। क्लियर? ओके। और यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है कि अगर सेम डी स्क्वायर एल हम रखते हैं फॉर थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रेटिंग 1.5 टाइम 0.5 टाइम्स हायर एज इरिस्पेक्टिव ऑफ द थ्री फेज मोटर्स। क्लियर? नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको फिर डिज़ाइन आती है स्टेटर साइड की डिज़ाइन, तो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स या फिर इक्वेशन जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं या फिर 4 मार्क्स के लिए 2 या 3 पैरामीटर्स भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके नोमेनक्लेचर इक्वेशन ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो वो है नंबर ऑफ मेंटन, स्टेटर टीथ, स्टेटर कोर, देन आफ्टर स्टेटर डिज़ाइन। क्लियर? उसके भी इक्वेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। देन आफ्टर स्टेटर कोर, लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ मीन टर्न, ये सारे इक्वेशन विथ नोमेनक्लेचर प्लस यूनिट्स, बस इतनी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है बिकॉज ये 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं। रेजिस्टेंस वी कैन ऑल्सो से दैट और वी ऑल्सो नो अबाउट दैट वैल्यूज़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट थिंग इज़ दी रोटर डिज़ाइन, तो उसके लिए भी रोटर कोर और ये सारी चीज़ें हम एज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एरिया से, देन आफ्टर एरिया फॉर दी पर्टिकुलरली एंड रिंग। ओके, सॉरी। नेक्स्ट इज दी रोटर टीथ, रोटर कोर एज वेल एज रोटर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये चीज़ें हुई रोटर डिज़ाइन के बारे में। ओके, now next important parameter is operating characteristics of the single phase induction motor। तो ये इन केस ऑफ दिस ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता है कि भाई आपका MMF फॉर द एयर गैप एज वेल एज सैचुरेशन फैक्टर एंड आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। बट पर्टिकुलरली जब आप MMF फॉर एयर गैप की बात करें तो आपको सिर्फ उसके इक्वेशन कि जैसे कि MMF कौन कौन सी चीज़ जगह पे कौन कौन से केसेस में आपको देखने को मिलेगा एयर गैप में, या फिर MMF फॉर एयर गैप, उसके लिए आपको MMF पूरे आपके मशीन के अंदर कौन कौन सी जगह पे होते हैं, उसके अंदर आपका एयर गैप के लिए कितना MMF होता है वो याद रखना है। देन आफ्टर यू हैव टू
डिस्कस। नेक्स्ट पैरामीटर इज सेचुरेशन फैक्टर, जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सेम वे उसके अंदर आपको क्या क्या जस्टिफाई करना है कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आफ्टर उसका इक्वेशन और उसकी वैल्यू, जो कि क्या है कि भाई उसका अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो टोटल MMF रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलरली मैग्नेटिक सर्किट डिवाइड बाय इट्स MMF रिक्वायर्ड फॉर दी इट्स एयर गैप। क्लियर? ओके। और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 1.1 to 1.35। क्लियर? ओके। सो ये रहा आपका पैरामीटर सेचुरेशन फैक्टर। देन आफ्टर आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर ऑल्सो देयर। सो उसके बारे में तो हमें काफ़ी चीज़ें पता ही है। नाउ दी वन अनदर 7 मार्क इम्पोर्टेंट टॉपिक इज लीकेज रिएक्टेंस एक्स। क्लियर? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेनली जो भी पैरामीटर्स है कि टोटल जो भी आपका लीकेज रिएक्टेंस है तो वो कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्ट होता है, या फिर कौन कौन से टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस, रोटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस, जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस, ओवरहैंग लीकेज रिएक्टेंस एंड स्क्यू, और सारे जितने भी लीकेज रिएक्टेंसेस हैं उन सब के यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स मैंने जस्टिफाई ऑलरेडी किए हैं। यहाँ पे आपको कोई और दिक्कत वाला काम मैं नहीं मानता। और इन सब के लिए अगर हम बात करें तो एक्स ऐसे स्टेटर स्लॉट के लिए अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर तो ऐसे स्टेटर स्लॉट्स, देन आफ्टर रोटर स्लॉट, सो यहाँ पे बनेगा SR स्लॉट फॉर दी रोटर्स, देन आफ्टर Z फॉर दी जिगजैग, ओवरहैंग के लिए O, और यहाँ पे स्क्यू के लिए SK। क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इसकी सारी जो भी टर्मिनोलॉजी है लीकेज रिएक्टेंस की वो सारी जस्टिफाई करनी है। उसके अंदर उन सब के इक्वेशन जो कि स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, रोटर लीकेज रिएक्टेंस एज वेल एज जिगजैग लीकेज रिएक्टेंसेस एंड ओवरहैंग। और उसके लिए यहाँ पे आपको मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे आपको उसके इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी मेन इक्वेशन थे वो मैंने एक साथ आपको रिप्रेजेंट कर दिए। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, जो कि यहाँ पे आज ही हमने डिस्कस किया, तो उसके रिवीजन की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। नाउ वन अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ न्यूमेरिकल पोर्शन। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल के अंदर हार्डली 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन नॉर्मली इस यूनिट से आ सकता है, जो कि मेन डायमेंशन D और L के रिगार्डिंग आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 7 मार्क के लिए ये कोई और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है जो कि मेन डायमेंशन के रिगार्डिंग होगा था, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ें पूछने जैसी है नहीं, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में थी। तो यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेन डायमेंशन या फिर D²L के जो भी हम एग्जांपल्स है सेपरेशन ऑफ D एंड L, वो सारे पैरामीटर्स याद रखने हैं। यहाँ पर्टिकुलरली सेपरेशन ऑफ D एंड L के टाइम पे L/τ की वैल्यू हम क्या लेते हैं, वो यहाँ पे सिंगल फेज और 3 फेज इन बोथ द केसेस यू हैव टू स्पेसिफाइड बोथ वैल्यूज़, बिकॉज इसके एग्जांपल में वो वैल्यू आप ना ले लो या फिर वहाँ 3 फेज के एग्जांपल में सिंगल फेज की वैल्यू ना ले लो, ये भी आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही पैटर्न है और वो भी D²L या फिर मेन डायमेंशन के रिगार्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे आपको उसके न्यूमेरिकल सेशंस यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस वेरी smoothly in the our numerical section for the our last unit or a design of 3 phase induction motor. At that case we discuss all kind of main dimension example. सो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें रिपीट करूँ और इतना टाइम वेस्ट करें, उनसे अच्छा है कि हम 2 चीज़ें नहीं सीख लें। क्लियर? ओके। सो ये चीज़ हुई आपकी कैपेसिटेंस वैल्यू फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ है। इन लास्ट लेक्चर और पर्टिकुलरली एक वीक पहले जब हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे उसके पहले मैंने वीडियो लेक्चर रखा था, लेकिन सम टेक्निकल इश्यूज़ you are not audible to listen my voice or audio, so that I repeated this lecture again. If you have any queries then you can contact me. Till then, have a nice day. Thank you. Jai Hind, Jai Swaminarayan.